Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Cancer Ascendant and how the month of December 22 is going to pan out for a Cancer Ascendant people. See, Cancer Ascendant is a thinking ascendant, and if Moon is very well placed in the horoscope along with Mars, so if Moon is placed in the first house, second house, fourth house, and 11th house in the birth chart with a very good placement of Mars, then these people have the capability to go places in their lives. You will find a lot of people belonging to Cancer Ascendant in the higher corridors of politics and bureaucracy, and they have good leadership capabilities that take them very high in their lives. Now, coming to the predictions for the month of December 22, we will first start with Sun. Sun is going to be placed in the fifth house of education, speculation, and creativity till 15th of December, and this is a good time frame for people who want to pursue activities related to fifth house. So you have a pretty good chances of making money in speculation, because when sun will be placed here in the fifth house till 16th of December, it will also be getting the aspect of the house lord Mars. So you have a very good probability of making money in speculation. At the same time, this will also prove to be a very fruitful month for people who are in education or any activities that are related with chemicals, fertilizers, or petrochemicals. After 15th of December, Sun will move to the sixth house, where it is going to remain stationed till the end of the month along with Mercury and Venus. In the second half of December, if you are a person who is involved in any business or area that deal with lending money or credit related business, then this will turn out to be a good month for you. In this month, the second house lord Sun, 11th house lord Venus, and third house lord Mercury are all combining in the sixth house, and they are going to be further aspected by Mars through the eighth aspect. So the sixth house becomes extremely strong because the stellium of three planets is getting created, and the energies of Mars are also going to fall into this house. So sixth house will give very prominent results in the month of December. On one hand, it indicates earning through a win in competition and litigation, and on the other hand, you need to be careful and watch out for your health, because the three planets that are combining here do indicate certain kind of an health issue, and focus needs to be on maintaining a strict daily routine and engaging in exercises like jogging or light cardio exercises. People who are in jobs will also see a very good time in their respective domains, because not only the sixth house lord is getting a lot of energies from different places. So self-earned wealth is seen to be coming from your family or from your jobs, and at the same time, the sixth house lord Jupiter is also well disposed in the ninth house. So people who are in service will see luck favoring them in the month of December. At the same time, it is also advisable that you get yourself involved in a charity, provide your time or money to these charitable institutions, because the 12th house is vacant, and the 12th house energies will also get involved due to the aspect of three planets on this 12th house. So it is better to engage in charity and at the same time keep a strict tab on your health in this month. Jupiter in the ninth house will continue to aspect the ascendant through the fifth aspect, along with the ninth aspect that is going to fall on the fifth house. So the first half of December, Sun is posited here, Mars is going to aspect its own house, and Jupiter will also provide its ninth aspect, and that is why the results of education, speculation, or creative activities will be observed very strongly in the first half, where Jupiter will is also going to help through its ninth aspect. Jupiter will also provide you ample opportunities to conceive and plan for kids till the time Jupiter is posited in this position, which is till April 2023. So it's a good time for family planning for all of you. Mars is going to remain in the Taurus sign in the 11th house, and it is going to aspect its own house. This Mars will continue to bless people who are involved in the fifth house professions, and at the same time, it is going to cast its eighth aspect on the sixth house. So, as I said earlier, Mars will continue to
enhance the significations that are related to the sixth house. So if you are facing any kind of a legal tangle or you are involved in any kind of a court cases and you have a hearing in this month, then there is a very high probability that that hearing will fall in your favor. Saturn is posited in the seventh house. It is going to continue make you follow a diktat or a fixed routine. People who have Saturn in their seventh house in the birth chart, they live a very monotonous kind of a married life throughout their lives, and they also get a partner which is much more mature or elderly compared to their own age or mindset. This Saturn also delays marriages. So if you're planning to get married, then again you'll have to wait, and there is a very less probability for you to get married in this month. The key to handle Saturn is to help the downtrodden people by offering them food that you eat at their home. See, any kind of a help that is given to people who lack resources or who are suffering appeases Saturn, and you get good results related to the planet then. Rahu is going to continue to transit through the 10th house, and Rahu in 10th house is considered exceptionally good because it elevates you to a much higher position in your workplace. People with Rahu in 10th house, they use every trick in the book in order to succeed in their profession. So this Rahu will help you to stamp your authority at the workplace, and if you are currently undergoing Rahu in the MD or AD, then you will observe these results more strongly compared to other people. Now there are also certain dates where you need to be very cautious about, and these are the dates when moon passes through your 6th, 8th and 12th house. You should avoid making any key decisions during these dates. So the dates where you need to be cautious in the month of December are 1st of December, 9th and 10th of December, 23rd and 24th of December, and 27th and 28th December. Just watch out for these dates and don't take any key decision at this point of time. If you look overall, this is a month where you need to be protective of your health, engage yourself in any kind of a charity, and if you are doing any kind of profession that is related to education, speculation, or any kind of a service related areas, then month of December will turn out to be very fruitful for you. So that's the summary for the Cancer Ascendant people. I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि कर्क लग्न वालों के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग सूर्य की बात करते हैं। देखिए, सूर्य 16 दिसंबर तक पंचम भाव से भ्रमण करते रहेंगे, जहां पर इनको मंगल की दृष्टि मिलेगी, क्योंकि मंगल सातवीं दृष्टि से अपने ही भाव को देखेगा और गुरु नवीं दृष्टि से इसी भाव को फिर से देखेगा। तो आपको 16 दिसंबर तक बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, अगर आप सट्टेबाजी से किसी भी तरह का संबंध रखते हैं, या फिर आप कोई आर्टिस्ट हैं, या आप पेट्रोकेमिकल्स वगैरह का भी अगर व्यवसाय करते हैं, कोई भी तरह का केमिकल, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स इस तरह के बिजनेस में है, या मिलिट्री या डिफेंस एरियाज में है, तो उनके लिए भी ये 16 दिसंबर तक का समय प्रोफेशनली बहुत अच्छा रहेगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्य छठवें भाव में एंटर कर जाएंगे, जहाँ पे कि शुक्र और बुध के साथ वो तिगड्डा बनाएंगे। शुक्र और बुध पहले से यहाँ मौजूद रहेंगे, तो जो सेकेंड हाफ होगा दिसंबर का, यहाँ पे सूर्य के एंट्री करने के पश्चात सिक्स्थ हाउस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी सर्विस रिलेटेड एरिया में हैं, क्योंकि छठवें भाव का स्वामी भी नवे भाव में जाएगा गुरु, तो आपको जॉब्स में बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा दिसंबर के सेकेंड हाफ में। अब जब छठे भाव में इतने प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो आपको छठे भाव से रिलेटेड जितने भी परिणाम है वो बहुत तीव्रता से देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है और उसकी हेयरिंग होती है दिसंबर में, तो चांसेस हैं कि आपके उसमें विजयी होने की संभावना बहुत बलवान हो जाती है। इसके अलावा जितने भी लोग फैमिली रिलेटेड बिजनेसेस में हैं, उनको भी इस समय में धन की प्राप्ति होगी। द्वितीयेश का भी छठवें भाव से भ्रमण हो रहा होगा दिसंबर में। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या किसी भी तरह की कंपटीशन में उतरते हैं, तो उसमें भी आपको आपके शत्रुओं के अगेंस्ट विजय मिलने की संभावना बड़ी बलवान हो जाती है।
अब यहाँ पे तीन प्लैनेट्स बैठ के मंगल भी आठवीं दृष्टि से देख रहा है, तो इसका एक विपरीत परिणाम व्यक्तियों को देखने को मिलेगा कि उनकी हेल्थ खराब होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको अपनी सेहत के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप सुबह उठ के कोई हल्का व्यायाम करते हैं, जैसे जॉगिंग के लिए चले जाइए या कोई भी लाइट कार्डियो एक्सरसाइजेस कर लीजिए, और अपना एक रूटीन बना के अगर आप रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा दिसंबर के महीने में। समय पे खाइए पिए और सोइए, उससे भी काफ़ी हद तक आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर चूंकि तीनों प्लैनेट्स 12वें भाव को भी देखेंगे, तो 12वें भाव की एनर्जीज भी इन्वॉल्व होंगी। तो यहाँ पर अगर आप अपने आप को किसी चैरिटी में इन्वॉल्व करते हैं, कुछ दान पुण्य का काम करते हैं, तो भी आपके लिए ये काफ़ी अच्छा साबित होगा दिसंबर के महीने में। और प्रायोरिटी आपकी यही होगी कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरह के प्लेसमेंट में व्यक्ति की सेहत खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपकी नेगेटिव भाव में एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। गुरु पे एक नज़र डालते हैं, तो गुरु नवे भाव से भ्रमण करते रहेंगे। गुरु काफ़ी अच्छी स्थिति में है, नवे भाव से ये पंचम दृष्टि से लग्न स्थान को देखेंगे, और नवी दृष्टि से पंचम भाव को भी देखेंगे। तो इन दोनों ही चीज़ों से जुड़ी हुई सिग्निफिकेशंस होती हैं, यानी फर्स्ट हाउस में आप खुद होते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप बीमार पड़ेंगे, लेकिन कोई बहुत लाइफ थ्रेटनिंग टाइप की सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि गुरु आपके लग्न को ही देख रहा है, तो वो आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा। और इसकी नवी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने की वजह से आपका दिसंबर के फर्स्ट हाफ में पंचम भाव से जुड़े हुए व्यवसायों से भी अर्निंग बहुत बढ़ जाएगी। तो आपको स्पेक्यूलेशन, एजुकेशन या किसी भी तरह के आर्टिस्टिक कामों से इनकम बढ़ने का काफ़ी अच्छा प्रोबेबिलिटी है दिसंबर के पहले हाफ में। और ये गुरु अपनी नवी दृष्टि से पंचम भाव को बैठकर आपको संतति प्लान करने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। यहाँ पे कई लोग कर्क लग्न के होंगे जिनको कि इस समय में अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 के बीच में संतति की प्राप्ति जरूर होगी। मंगल 11वें भाव में बैठे रहेंगे पूरे महीने के दौरान दिसंबर में, और यहाँ से ये अपने भाव को ही देखेंगे। तो यह भी पंचम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रोबेबिलिटी बनाते रहेंगे। इनकी चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर भी पड़ेगी, तो अगर आपके मंगल की महादशा चल रही है, तो आपका दूसरा और 11वां भाव दोनों ही एक्टिवेट हो जाएंगे, और इस समय में आपको बाकी लोगों के मुकाबले में और भी ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। शनि सप्तम भाव में ही बैठे रहेंगे, और यहाँ पर भी वो मंगल के ही नक्षत्र से भ्रमण करेंगे। तो अगर आप बिजनेस या पार्टनरशिप्स में हैं, तो इस समय भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी दिसंबर के महीने में। देखिए, शनि सप्तम भाव में बैठ के आपकी शादी को डिले करने का काम करता है, तो जितने भी अनमैरिड लोग हैं उन लोगों को जब तक शनि यहाँ से निकल नहीं जाता तब तक इंतजार करना पड़ेगा, अनलेस उनकी शनि की ही महादशा चल रही हो, क्योंकि उस केस में परिणाम अलग मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपको जनवरी 2023 तक डिले करने का काम करता रहेगा। उसके बाद ही आपकी कुछ प्रोबेबिलिटी बननी शुरू होगी, खास करके जब आपका गुरु 11वें भाव में चला जाएगा, यानी कि 2024 के ऑनवर्ड्स, तब आपकी शादी होने की संभावना और भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये प्योरली आपके पर्सनल कुंडली पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, गोचर में शनि आपकी शादी को डिले करता रहेगा। यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह की पार्टनरशिप में हैं या किसी भी तरह के बिजनेस में हैं, तो उसमें भी बहुत मोनोटोनस टाइप का एनवायरनमेंट बन जाएगा, क्योंकि शनि डिसिप्लिन मांगता है, आपको एक रूटीन बना के चलना पड़ता है जहाँ पर भी शनि बैठा होता है कुंडली में। तो यहाँ पे चूंकि वो सप्तम भाव से भ्रमण कर रहा है, तो आपका बिजनेस वगैरह में भी आप रोज जाकर एक ही तरह के काम करेंगे, कुछ नया क्रिएटिव करने का स्कोप आपको बिजनेस में तो नहीं मिलेगा। इसको शनि को डील करने का एक उपाय होता है कि शनि हमेशा दबे कुचले लोगों की मदद करने को अगर आप करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो अगर आप गरीब लोगों को वो खाना खिलाते हैं जो आप खुद खाते हैं, या कैसे भी ऐसे लोग हैं जिन जो बहुत तकलीफ में हैं, उनकी अगर आप मदद करते हैं, तो फिर ये शनि को खुश करने का बहुत अच्छा तरीका है। राहु आपके दशम भाव से भ्रमण करते रहेंगे। राहु दशम भाव से जब भी जाता है, तो व्यक्ति को कार्यस्थल पर ऊंचा उठाने का कार्य करता है। ऐसे लोग कुछ भी करके अपने प्रोफेशन में ऊपर उठते हैं, इसके लिए वो किसी नियम का पालन करना जरूरी नहीं समझते। तो यहाँ पर राहु की अगर आपको महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आपको ये रिजल्ट और भी तीव्रता से मिलेगा। मैंने ऐसी बहुत कुंडलियां देखी हैं जिसमें व्यक्ति को राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है, और जब राहु का दशम से भ्रमण होता है, तो उनको एकदम से 2-3 लेवल ऊपर का काम करने को मिलता है। चाहे वो किसी भी एरिया में हो, सर्विस में हो, बिजनेस में हो, एकदम से ऊंचा लेकर जाता है आपको। नॉर्मली भी ये
आप प्रोफेशन में अच्छा रिजल्ट लाके देगा, लेकिन अगर महादशा अंतरदशा चल रही है तो रिजल्ट और भी तगड़ा मिलेगा आपको। अब हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए। ये वो दिन है जब चंद्रमा आपके 6, 8 और 12 से निकलता है। तो दिसंबर में आपके लिए सावधान रहने वाले दिन है 1 दिसंबर, 9 और 10 दिसंबर, 23 और 24 दिसंबर, 27 और 28 दिसंबर। इन दिनों में आप सावधान रहिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कर्क लग्न वालों के लिए जो चीज़ें उनको ध्यान में रखनी है वो है कि अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। पूरा फोकस आपका सेहत पर ही रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन स्पेक्यूलेशन सेक्टर से जुड़े हैं या किसी भी तरह के सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय साबित होगा कार्य क्षेत्र पर। और हो सके तो खुद को किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में भी इन्वॉल्व कीजिए, जिससे कि आप इसका जो ट्रिकी प्लेसमेंट है हेल्थ रिलेटेड एरिया में, उससे आपको बचने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।